हाय एंड वेलकम नमस्ते सलाम ने मजा मजा बोले तो अगेन अनदर सरप्राइज दिस बॉय इज अमेजिंग ही नोज द प्लेसेस एंड द लिस्ट वेयर ही वांट्स टू टेक मी तो ये हम आए फ्लेम्स पे apparently I'm going to fly the next day so he always plans. I know it's a tough time and it's our decision and I'm very happy that he supports me with my career, my growth. He's never stopped me, so I'm pretty blessed to have him because I'm sure people ask me that वो इंडिया में रहता है, you live in Africa, ऐसे कैसे होता है? But yeah, we are grown ups, we have matured enough. I'm sure there are many defense places where people have to live apart. So I'm sure at least this is better because every 3 months I travel. He also travels every 3 months to Africa. Soon I will start with that vlog and how I learned to live in Africa because of him. ट्रस्ट मी मैं 4 साल से यहाँ पे रह रही हूँ अफ्रीका में बट मैंने कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया जितना इस बंदे की वजह से मुझे मज़ा आया सो आई रियली ओ हिम अ बिग टाइम दैट कॉन्फिडेंस दैट ग्रोथ एंड दैट होल न्यू वर्ल्ड ऑफ मूवी types, it happens, is how we are living and I am happy, so not an issue, and my family is as well. तो चलते हैं ये वेन्यू पे. This is Flames. Looking for a perfect weekend escape in Surat, we explored Flames Dumas, a beautiful farm style destination near Dumas beach. From peaceful green surroundings, ये पीछे जंगल है, and fun activities to great food and relaxing vibes, this place is perfect for family outings, celebrations, and day picnics. पीछे इनके event हुआ था just because this is New Year time. I went India, right? Now, if you see, Flames is becoming very favorite spot in Gujarat. Basically, it is of one of his rider friend who owns this, and that is how Renish is aware about it. फिर क्या हम मस्त खा पी के फूड वॉज वेरी गुड. इट वॉज लाइक अनबीटेबल एंड ब्यूटिफुल टेस्ट, आम्बियंस, ठंडी बहुत थी इसके लिए लाइक हम हमारे पैंट टी शर्ट में ही अच्छे दिखते. एंड देन सी द वे होल सूरत सिटी वॉज डेकोरेटेड. दिस इज़ कॉपीड लाइक टाइटैनिक. फिर क्या ये दूसरे दिन हम हमारी बाइक चेक कराने गए. रेनिश एंड हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एज यूजुअल, नाउ फर्स्ट वाइफ. शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड, अब शादी हो गई तो वाइफ. He tested, then he took me for pani puri, dahi puri ride and everything. ये हम उसको टेबल बनाते हैं हमारे टॉप बॉक्स के whatever that what we call it's a seat kind, okay. फिर आ गया टाइम अब डिपार्ट करने का. आई नो ये बहुत दुख की बात है बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा. सो दिस इज़ नवसारी. हम निकले. आवर फ्रेंड टोल्ड, ही वॉज काइंड इनफ, ही टुक अस टू द नॉट एयरपोर्ट, सॉरी, स्टेशन. We went to station. Yes, this time we went by train. Can you believe it? बहुत मज़ा आया. Better than car or bike or anything. तो हमने बुक की थी वंदे भारत. Traveling from Navsari to Mumbai on the Vande Bharat Express is not a journey. Just look at this. उसका look ही काफ़ी है. क्या beautiful थी ये. It's an experience of speed, comfort, and modern Indian rail travel. Just look at the way inside, automatic doors, automatic flush in the washroom. Unbelievable. So it's covering the distance in just few hours. This semi-high speed train makes the trip smooth. We were there in Mumbai in 2.5 hours compared to 9 hours last time what we did, and stress free compared to regular trains or road travel that we do. So, why Vande Bharat is special is speed and time saving, premium comfort, modern features. You have automatic sliding doors, large glass windows. This is what I'm doing. You see, the scenery was amazing. मतलब बाहर का सिनेरियो अलग ही था. Clean bio vacuum toilets, LED information displays, बैक टू बैक. ये हम पहुँचे हमारा मुंबई, आमची मुंबई. वी वर जस्ट ड्राइविंग आवर वे आउट. लुक एट द स्ट्रगल वी हैड. ये हमारा मुंबई है. दिस इज़ द लाइफ माई फ्रेंड. पीपल आर फिल्ड विथ लाइक क्रेजी. वी हैव एवरी वन कशिंग टू गो समवेयर और द अदर. ये तो कुछ नहीं है. यू विल सी, जब हम नीचे उबर के लिए रुके थे, देर इज़ दिस एस्केलेटर.
Okay, no, it's called elevator, escalator. Yeah, I'm right. Escalator kept on filling with people. It just did not stop. While Renish was looking for the exit, I shot that video and see this is what I was talking. ऊपर देखना, नोटिस करना आप, बैक टू बैक लोग आते ही जाते हैं. You see, it's never empty. Then finally our Uber came. We reached after an hour or two something. Mumbai का traffic. No one can beat my boss. No one can. हमको दरबार वाले ने बोला wait करो. But it was very quick. We got stable because we were two. Ranesh is like, let's go. This was our pina colada. Then this is Malaysian chicken we ordered. Both mast हैं इसका taste. This is our patent menu that we every time have at Persian. मेरे को ये काकड़ी बहुत इंट्रीगिंग लगी. मस्त डिज़ाइन किया है काट काट के. एंड आर मोस्ट फेवरेट चिकन बिरयानी, दम बिरयानी खाना. इफ़ यू एवर गो टू पर्शियन, उनका दम बिरयानी बहुत मस्त है. फिर ये टाइम आया मेरा टेस्टिंग का. ये जो टिशू में थोड़ा सा कुछ तो गरम मसाला आया रहेगा. इट्स ओके माइनस दैट, बट टेस्ट वॉज वेरी नाइस. आई रियली इन्जॉयड द बिरयानी. थोड़ा बहुत लाइट खाया. येस, इंडिगो फ्लाइट्स डजंट गिव यू फूड एंड ऑल, बट एज इट इज़ किसको खाना है ट्रैवलिंग के टाइम पे, सोना ही था मेरे को. नाइट ट्रैवलिंग था. तो ये हम पहुँचे फिर एयरपोर्ट. यू सी एट द एयरपोर्ट, गॉड इट वॉज डेकोरेटेड लाइक सम मैंशन और अ पैलेस, यू नो, ब्यूटिफुल. ये घड़ी लेकिन थोड़ी दुख भरी भी होती है. हैव टू लीव रेनिश एंड गो. और फिर वी आर गोना पार्ट. देन वी आस्क ईच अदर कभी मिलेंगे रेनिश, कब आएगी वापस तू. ही सेज. देन आई आस्क हिम तू कब आएगा. Anyways, part and parcel of life sometimes, you know, it's important that you give space to each other, grow, and then you get to experience all these things. ये मैं चली फाइनली बाय बोल के सबको एयरपोर्ट के अंदर. I was really intrigued with the way the whole airport was decorated. My God, unbelievable. So I told my goodbyes to Renish and finally entered. I have the video but I don't want to put because फिर वो याद दिलाता है, रोना आता है. बट ये टाइम इंडिगो का बहुत प्रॉब्लम हुआ. इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लाइट, बट उनका बोर्डिंग पास स्कैन नहीं कर रहा था. एवरीवेयर इट वॉज मैन्युअली वी हैड टू गो थ्रू. एनीवेज, बट ये सब पूरा क्या बोलते हैं, तकलीफ़ को पार करते हुए हम आ गए दूसरी बाजू. दैट इज़ नियर द ड्यूटी फ्री. ये ड्यूटी फ्री, लुक एट द वे फॉर क्रिसमस इट वॉज लिट अप. माई गॉड, यूल सी द वे आई हैव इवन कैप्चर्ड. अकेले हो तो कुछ ना कुछ जुगाड़ मारना ही पड़ता है. ये हम ड्यूटी फ्री में घूमते घूमते आई केम अक्रॉस, यू सी दिस पेन, 25,000 गेट 25,000 परफ्यूम, ये वो. फिर थोड़ा सा मैंने सांस लिया, थोड़ा बहुत एन्जॉय किया. लेट मी लीव यू फॉर अ मोमेंट. तो बस दैट प्लेस यू टू सॉ द क्रिसमस का डेकोरेशन, उधर मैंने अपने फ़ोटोज़ खींचे. ये नया शॉप खुला है. इफ़ यू कम टू एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, डू विजिट दिस. बहुत ब्यूटीफुल इंडियन थिंग्स, ईयरिंग, फिर शॉल, मफलर, एंड देन यू शुड सी देयर चॉकलेट्स एंड वॉट नॉट. मतलब एक्सेसरीज से लेके स्वीट से लेके सुवेनियर सब मिलेगा आपको. आई वॉज इंट्रीग. सी दिस, ये हमारी चाय की किटली कितना मस्त है ना, वार्डली पेंटिंग के साथ. दीज आर टी बैग्स, बहुत अच्छे से चाय की पत्तियाँ अलग अलग उनके पास है. देन आई डोंट नो, देयर वाज यू नो झुमकाज, फिर अलग अलग चॉकलेट्स. लुक एट दिस किंडर जॉय का साइज, माय गॉड. एंड दिस chupa chups lollipop. It was a father of lollipop. Anyway, so I came, I adjusted my phone, took some video. How can I not shoot video? कि कैसे हम अकेले travel करते हैं. You should learn to be a solo traveler. मज़ा आता है. फिर ये हम चले, हमारा चेक पॉइंट सब कुछ करके finally to the flight. Good, there was no delay. But yes, it was a hassle of the boarding pass. But still I prefer Indigo. उनका time बहुत अच्छा है. भले even if they are 10 minutes late or whatever, they try to get you on time. तो ये रनिश के साथ constantly, you know, missing him, यादें, ये सब पूरा सफ़र, ये छुट्टियाँ, बहुत मज़ा आता है. मतलब बात ही अलग है. कौन घुमाएगा, कौन मज़ा कराएगा. ये हम पहुँचे प्लेन में.
It was a little bitter experience again because मेरे बाजू में जो बैठे थे they were too much. They always going to fight with the next person. It was a very big one. Anyways, फिर I don't know, someone head had to happen a fight. He changed. मैंने भी मौके पे चौका मारा. मैंने बोला प्लीज़ मेरा भी सीट चेंज करो. 2 हट्टे गट्टे मेंस नेक्स्ट टू मी, ऐसे हमारा होगा. तो फाइनली ये सब हुआ एंड माई प्लेन टुक ऑफ. हम बाय बाय बोलने वाले थे इंडिया को और जस्ट नज़ारा देखने लायक था. एट नाइट दिस सिटी लुक्स लाइक जगमगाते तारे इन अ गैलेक्सी. और फिर ये गैलेक्सी देखते देखते हम एकदम दूर आ गए और दूर से फिर सलाम मार के हम चले सोने. सो वो के सब कुछ हुआ. इट वॉज टाइम टू देन लैंड इन नायरोबी. सो दिस इज़ आर नायरोबी देन एट नाइट टाइम. इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था व्हेन वी वर गोइंग टू लैंड. और यस आई थिंक हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँचे. फिर क्या वापस वही काम रूटीन. यूल सी मी हाउ आई स्पेंड माई डे, हाउ आई अनपैक. आई गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन. येस आई वर्क इन अफ्रीका नायरोबी एंड आई एम हैप्पी. वॉट एवर इट इज़ गॉड हैज़ गिवन इज़ यू नो आई एम थैंकफुल. तो ये लैंडिंग अच्छी करके थैंक यू बोल के हम बस के लिए रुके थे एयरपोर्ट पे. या इट्स नॉट दैट बिग एयरपोर्ट बट येस ये सुबह हो गई. हम बाहर आए. I was waiting for my Uber to come. Yes, यहाँ पे Uber चलती है like I told you. Once my Uber came, I was headed to my home. Or bus, my home. Yes, I live alone here, but my home. I really love it. And I really enjoy the way Africa has done so much for me. I owe it a lot. But yes, I will owe you and be obliged with your subscribes, like, and share. Do shower your love to help to grow community. The ones who have already subscribed and are viewing, I am highly thankful to you as well. So I hope you like my vlogs, and if you want me to continue to put as many as possible, do continue to give the support. ये हमारा एक्सप्रेसवे है. सो एक्सप्रेसवे पे these are the buildings और ये सुबह का नज़ारा. आहा, I can just leave you with it. Once again, don't forget to like, share, and definitely subscribe. Till then, take care. Thank you again. Ne malsu બીજી વાર. ત્યાં સુધી એકદમ ફાઇન ને સારું ધ્યાન રાખો.